సంగారెడ్డి పట్టణంలో ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ గ్యారంటీ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం పాల్గొన్న ఏఐసిసి అధికార ప్రతినిధి గురుదీప్ సింగ్ సప్పల్, సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే, టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి, మాజీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జెట్టి కుసుమకుమార్ పాల్గొన్నారు. ఏఐసిసి అధికార ప్రతినిధి గురుదీప్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే 6 గ్యారంటీ స్కీములను నెరవేరుస్తామన్నారు. అవి మహాలక్ష్మి పేరు మీద మహిళలకు ప్రతి నెల 2,500 రూపాయలు, 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం, రైతు భరోసా పేరుతో ప్రతి ఏటా రైతులు, కౌలు రైతులకు 15,000 రూపాయలు, వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000 రూపాయలు, వరి పంటకు 500 రూపాయలు బోనస్, గృహజ్యోతి పేరుతో ప్రతి కుటుంబానికి 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు పేరుతో ఇల్లు లేని వారికి ఇంటి స్థలం మరియు 5 లక్షల రూపాయలు, ఉద్యమకారులకు 250 చదరపు గజాల ఇంటి స్థలం, యువ వికాసం పేరుతో విద్యార్థులకు 5 లక్షల రూపాయల విద్యా భరోసా కార్డు, ప్రతి మండలంలో తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ చేయూత పేరుతో 4,000 రూపాయలు నెలవారీ పింఛను, 10 లక్షల రూపాయలు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ బీమా. ఈ బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం పార్టీలు కలిసి కాంగ్రెస్ని అధికారంలోకి రానివ్వకుండా కుట్ర చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నెరవేరుస్తుంది. గాంధీ కుటుంబానికి పదవులు, పవర్ కాదు ముఖ్యం అని అన్నారు. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు, అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ మల్లికార్జున ఖర్గే గారి యొక్క సలహాదారు, దాంతోపాటు రాజ్యసభ టీవీ అనేది ఉండేది. ఆ టీవీకి ఫౌండర్, సిఇఓ అండ్ ఎడిటర్గా అపారమైన అనుభవం ఉన్న శ్రీ గురుదీప్ సప్పల్ గారు, మీ అందరికీ తెలుసు, నిన్న అతి భారీ బహిరంగ సభ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులందరి యొక్క సమిష్టి కృషితో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు 6 గ్యారంటీలు ప్రకటించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఎవరైతే ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి, తెలంగాణకు చెందిన 119 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకి ఒక్కొక్క సీనియర్ నాయకులు, సిడబ్ల్యూసీ సభ్యులు, ఇతర రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షులు, సిఎల్పి నాయకులు, వీరందరూ కూడా 119 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు వెళ్ళి ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారు ప్రకటించిన 6 గ్యారంటీ కార్డ్స్ని ప్రజలకి పంచే కార్యక్రమం, ఇంటింటికి వెళ్ళి వారికి ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ యొక్క గ్యారంటీలు ఏమిటి అని చెప్పే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి గారితో పాటు గురుదీప్ సప్పల్ గారు ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక వారేం చెప్పదలుచుకున్నారో వారి మాటల్లోనే మీకు ఇది. ఈసారి తెలంగాణ హైదరాబాద్లో జరిగినాయి. దానికి సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారితో పాటు మరి దేశవ్యాప్తంగా సీనియర్ నాయకులు, ముఖ్య నాయకుల యొక్క కమిటీ, సిడబ్ల్యూసీ కమిటీ, అందులో ముఖ్యమంత్రులతో పాటు కొన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో పాటు మరి ఒకరోజు సిడబ్ల్యూసీ సమావేశంలో ఈ దేశ ప్రజల కోసము, ప్రజాక్షేమం కోసము, ప్రజల కోసము ఈ సిడబ్ల్యూసీ సమావేశాల్లో ఇప్పుడున్న రాజకీయ పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని బీజేపీ మత రాజకీయాలు చేస్తూ దేశ రాజకీయాలను కలుషితం చేస్తున్న సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సెక్యులర్ పార్టీ, హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు, సిక్కులు అనే భావనతో, అన్ని మతాలు, అన్ని కులాల యొక్క భావనతో రాజకీయం చేస్తుంది. మనకు భారతదేశ స్వతంత్రం రాకముందు, స్వతంత్రం వచ్చిన ఇప్పటి వరకు అధికారం కోసము ఎప్పుడు కూడా భావాలను చంపుకోలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఆ గాంధీ ఫ్యామిలీ. కాబట్టి వాళ్ళ అధికారాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నము
బీజేపీ చేస్తున్నది. కాబట్టి దాన్ని తిప్పికొట్టే ఒక కార్యాచరణ కార్యక్రమము. అదే కాకుండా రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలు తెలంగాణలో కూడా మరి నిన్న రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్కి అండగా బీజేపీ పనిచేస్తుంది, ఎంఐఎం పనిచేస్తుంది. ఈ మూడు పార్టీలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ అధికారం రాకుండా మరి కుట్రలు చేస్తున్నది అనే మాట కూడా, దీని విషయంలో ప్రజలు జాగ్రత్త పడండి అని నిన్న రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారు. ఈ సోనియా గాంధీ గారు ఏదైతే సోనియా గాంధీ గారు, ఖార్గే గారు, ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ రాహుల్ గాంధీ గారు నిన్న ఎన్నికల డిక్లరేషన్ పేద ప్రజలను ఆదుకునే దాని మీద ఇప్పుడు పెద్దలు గురుదేవ్ గారు వారు చెప్తారు. కాబట్టి గురుదేవ్ గారు చెప్తారు, వారు చెప్తారు. వారు ఎందుకంటే మనకు ఒక్కరోజు ఈ సమయం నుంచి మొదలుకుంటే సాయంత్రం వరకు వారి యొక్క కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ఈ ప్రెస్ మీట్ తర్వాత ఒక స్లమ్లో వారి యొక్క ప్రోగ్రాం ఇప్పుడు ప్రకటిస్తున్నారో పథకాలకు సంబంధించి ఆ పథకాలను ప్రజలకు ఇచ్చే కార్యాచరణ కార్యక్రమం ఇప్పుడు అక్కడ సంతోష్ వార్డులో ఒక దగ్గర పెట్టడం జరిగింది, అక్కడ శివాజీ నగర్లో. దాని తర్వాత ముస్లిమ్స్ మన మైనార్టీ వార్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నాసాబ్ గడ్డలో అక్కడ కూడా వారి యొక్క విజిట్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా. దాని తర్వాత సాయంత్రం ఈరోజు గణేష్ చవితి, ఈరోజు వినాయక పూజ, విఘ్నేశ్వరుని యొక్క పూజ. ఈరోజు ఒక గణేష్ మండపం వివేకానంద దగ్గర వారి చేతుల మీద అక్కడ పూజ కూడా చేసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు వారు రాత్రి వరకు ఈ సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి వారి ఇన్ఛార్జ్గా ఈరోజు ఇలా ఈ కార్యక్రమాలను కూడా వాళ్ళు పాల్గొనడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, మీరు సోషల్ మీడియా అందరూ కూడా మీ సమయాన్ని అంతా కూడా ఈరోజు కేటాయించాలని అందరూ కోరుతున్నాను. తప్పకుండా ఈరోజు కార్యక్రమానికి సంబంధించి వారి విజిట్, వారి కార్యాచరణ, వారి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనము రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అన్ని ఛానల్స్ మనము ప్రింట్ మీడియా, జిల్లాలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ దీన్ని బాగా ఫోకస్ చేయాలని మీ అందరూ కూడా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే వారు ప్రకటించే పథకాలు సోనియా గాంధీ గారు రాష్ట్ర పేద ప్రజల ఆదుకునే పథకాలు సోనియా గాంధీ గారు, ఖార్గే గారు ప్రకటించిన, రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రకటించిన అన్ని డిక్లరేషన్స్ ఏతున్నాయో. కాబట్టి మీరందరూ ఈ మీడియా పరంగా కూడా వారి సందేశాన్ని మీరు ఈ సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం అనేది కాదు రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలిసే విధంగా మీరు దీన్ని మీ ప్రచారం ద్వారా తీసుకెళ్లాలని మరి కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు వారు కార్యక్రమాల్లో కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్. सबसे पहले तो आज मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी की आप सबको बधाई। और गंगा जी जो है हम लोग यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत धूमधाम से मनता है आज का दिन। तो इसके बाद हम कहीं चल के दर्शन भी करेंगे गणपति के। तेलंगाना में आज पहली बार मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूँ। दिल्ली में तो हम लोग करते हैं और मेरा एक अपना निजी रिश्ता है तेलंगाना से, जो मैंने आपसे भी डिस्कस नहीं किया जग्गा जी, तो जी से भी नहीं किया। जब तेलंगाना का बिल पास हो रहा था तो मैं राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे, देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी का सलाहकार था और यूपीए सरकार का वो आखिरी दिन था हाउस का 20 फरवरी 2014 को। और पूरी कोशिश ये थी किसी तरह से बिल पास ना हो पाए उसमें आखिरी मिनट तक, क्योंकि अगर उस दिन बिल पास नहीं होता तो सरकार का टेन्योर खत्म था, फिर चुनाव आ जाते, फिर तेलंगाना बनता ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सीमांध्रा के सारे एमपी जो कांग्रेस के भी थे उस समय, और अंदर से बीजेपी भी, उन सब की कोशिश थी कि वो उस दिन बिल पास नहीं हो। और मुझे याद है कि सुबह के टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उपराष्ट्रपति जी को मिले थे और मुझे भी ये निर्देश मिला था कि आज कैसे भी करके इस बिल को पास कर देना चाहिए ताकि तेलंगाना के लोगों की जो डिमांड है, और उस वक्त
उस डिमांड को आज़ादी के बाद से चलते हुए 65 साल हो गए थे। तो उस मांग को पूरा करने के लिए जो वचन था सोनिया गांधी जी का आप सबके लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए, वो पूरा हो। और वो दिन राज्यसभा मैंने 10 साल सलाहकार के तौर पे मैंने हैंडल किया। वो दिन सबसे बड़ा दिन था जिस दिन देश में एक नया राज्य बना। और उस दिन मुझे याद है कि जो टीडीपी के सांसद थे वो चाह रहे थे कि किसी से हंगामा हो जाए, हाउस चले ही नहीं। मुझे याद है कि बीजेपी ने आखिरी मिनट में कहा कि जब तक सीमांध्रा को कुछ नहीं मिलेगा तो तेलंगाना को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और आखिरी मिनट पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने तेलंगाना को स्पेशल पैकेज, आंध्रा को स्पेशल पैकेज की घोषणा की, तब जाके बिल पास हुआ। वो अलग बात है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने आंध्रा को कभी कुछ दिया नहीं, भूल गए। जो शर्त रखी थी तेलंगाना के बनने के टाइम पे, क्योंकि वो शर्त आंध्रा के लिए नहीं थी, वो बेसिकली तेलंगाना को रोकने के लिए थी। लेकिन सोनिया जी के टाइम पे वो अध्यक्ष थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ये बिल्कुल साफ था कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी देकर रहेगी। तो तमाम जो उस समय रुकावट थी उसको पूरा करते हुए उस दिन ये बिल पास हुआ था और आप सबके लिए एक नया राज्य बना। और मुझे लगता है मेरे जीवन का यादगार दिन है कि उस राज्य को बनाने में हमारा भी एक थोड़ा बहुत छोटा सा रोल रहा, और आज उस राज्य के अंदर मैं आया हूँ। कल हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की यहाँ पे, जिसमें हमारी पूरी वर्किंग कमेटी, देश में सभी राज्यों के कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे विधायक दलों के नेता, वो सब लोग कल यहाँ पे तेलंगाना में आए, क्योंकि हमको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह का राज्य बनाना चाहती थी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह के राज्य की कल्पना करती थी, कांग्रेस पार्टी की जो सपना था तेलंगाना के लिए, वो 10 साल में पूरा नहीं हुआ। और आज पूरी पार्टी एक होकर आपके बीच में आई, और आज सभी 119 विधानसभा क्षेत्र जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ पे वर्किंग कमेटी का एक एक सदस्य की आज ड्यूटी लगी कि हम आप लोगों से बात करें और बताएं कि हम जो तेलंगाना चाहते हैं वो तेलंगाना कैसा होगा। वो तेलंगाना जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जो सोनिया जी का वायदा था आप सबसे, वो वायदा जब पूरा किया गया, वो जो सपना देखा गया, वो सपना आज पूरा करने के लिए हम तेलंगाना की जनता के बीच में हैं। क्योंकि वायदा केवल तेलंगाना की पार्टी का नहीं है, ये वायदा पूरी कांग्रेस पार्टी का है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तमाम अपने मेंबरों को ये निर्देश दिया कि हम लोग आपके बीच में आके बात करें। पिछले 10 साल जो तेलंगाना के रहे हैं, वो ये कहा जाता है कि तरक्की बहुत करने की कोशिश करते हैं केसीआर, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल में केवल केसीआर फैमिली के 3 लोग मंत्री हैं और 11 पोर्टफोलियो उन्हीं के पास हैं। मोदी जी ने तो बाद में जनता का पैसा अपने दोस्तों को देने की शुरुआत की, तेलंगाना में उससे पहले शुरू हुआ, साथ साथ दोनों सत्ता में आए, लेकिन जो मॉडल यहाँ पे शुरू किया गया, उस मॉडल के तहत पूरा का पूरा अमीरों को और अमीर बनाने का एक मॉडल इस स्टेट के अंदर शुरू हुआ। घोषणाएं बहुत करी केसीआर गवर्नमेंट ने, लेकिन आप जानते हैं, चाहे वो मकान की घोषणाएं हों, चाहे फीस रिम्बर्समेंट की घोषणाएं हों, वो केवल कुछ एक सैंपल लोगों को देते हैं, सैंपल लोगों को देते हैं जिससे लगे कि स्कीम है, लेकिन जिन लोगों के लिए स्कीम है, कहीं कहीं पे तो 90-95% लोगों तक वो स्कीम पहुंची नहीं है, 2-3% को देकर वो चुप हो गए। और यही कारण है कि देश का जो सबसे बड़ा एक गड़बड़ चल रही है, और मुझे लगता है आप सबको मालूम होगा कि अकेली सरकार है जो सरकारी फैसला लेती है, उसका जो ऑर्डर इशू होता है, नोटिफिकेशन इशू होता है, उसको रजिस्ट्री में डालती नहीं है। आज करीब 80,000 नोटिफिकेशन जो तेलंगाना में केसीआर सरकार ने पिछले 10 साल में, 9.5 साल में लिए हैं, 80,000 नोटिफिकेशन रजिस्ट्री में नहीं है। तो जनता अगर पूछना चाहेगी, या बाद में कोर्ट केस होता है, जैसे धारणी के केस में आप सब जानते हैं कि किस तरह से गड़बड़ होकर पूरा का पूरा कंफ्यूजन स्टेट में कर दिया गया है, लोगों की जमीनें जा रही हैं। इसी तरह से 80,000 नोटिफिकेशन ऐसे हो गए हैं जो कि रिकॉर्ड में ही नहीं है। घोषणा की, उस पर कुछ कुछ काम किया और उसको रिकॉर्ड से हटा दिया। तो आने वाले दिनों में
तेलंगाना की जनता को जो दिक्कतें होने वाली हैं आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में, वो आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि सरकार कोई फैसला ले और उस फैसले की कॉपी को गायब कर दे, उसको रजिस्टर में ना डाले। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तेलंगाना के अभी सरकार के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि ये चुनाव हम तेलंगाना की सरकार को बनाने के लिए लड़ेंगे। ये चुनाव हम उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए लड़ेंगे जो उम्मीदें तेलंगाना की जनता ने हमसे लगाई थी। कल एक बहुत बड़ी हमारी रैली हुई थी, आप सबने देखा। बीते लंबे समय में इतनी जनता इतने जोश के साथ सुनने नहीं आई, क्योंकि जनता के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा भी है और हमसे कुछ उम्मीद भी है। और कल सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने कल तेलंगाना की जनता से 6 वायदे किए। आने वाले दिनों में हम और बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन ये 6 गारंटी पहले हमने कल दी हैं। गारंटी शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 तरह के विजन होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, कि तेलंगाना के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, तेलंगाना के अंदर एजुकेशन के लिए हम क्या करेंगे, तेलंगाना के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, विमेन के लिए हम क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, तेलंगाना के रीजनल विकास के लिए क्या करेंगे। ये सब पॉलिसी का इशू है, इस पे प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में फैसला लेंगे और 100 दिन के अंदर उसको पूरा करेंगे। ये जो 100 दिन के अंदर पूरा करने की जो हमारी योजना है, उसको हमने गारंटी नाम दिया है। ये गारंटी हमने कर्नाटक में भी दी थी, गारंटी हमने हिमाचल में भी दी थी, और अब जानते हैं कि दोनों राज्यों के अंदर गारंटी हमने लागू कर दी है। हमने ये नहीं कहा कि अभी हम नई नई सरकार में आए हैं, अभी हम पैसा देखेंगे, अभी बजट बनने दीजिए। पहली कैबिनेट मीटिंग से ये गारंटी लागू हो गई है। तो ये जो गारंटी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली गारंटी जो कांग्रेस पार्टी की है, जो कि पहली कैबिनेट मीटिंग में अनाउंस हो जाएगी और 100 दिन के अंदर लोगों तक पहुंच जाएगी, वो है महालक्ष्मी योजना। जो महिलाएं हैं, लगभग 48% यहाँ की जनता महिलाएं हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी का ये ऐलान है कि हर महीने 2500 रुपया उनको दिया जाएगा। हर महिला को, हर परिवार में 2500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और जो गैस सिलेंडर है, मोदी जी बहुत कहते हैं मैंने उज्ज्वला योजना शुरू की। आप सब जानते हैं कि लगभग जो सरकार का डेटा है अपना, वो सिलेंडर भरवा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब 1100 का 1200 का सिलेंडर मिलने लगा और लोगों की आमदनी 3-3, 4-4 हज़ार से नीचे है आमतौर पे, तो अपनी आमदनी का 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा उस सिलेंडर पे नहीं खर्च कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के टाइम पे इससे ज्यादा महंगा पेट्रोल का रेट था, अंतर्राष्ट्रीय रेट $150 तक पहुंच गया था। आजकल तो 70-80 के आसपास झूलता रहता है, लेकिन सिलेंडर हम लोग 450 रुपये देते थे। पेट्रोल हम लोग 60 रुपये 65 रुपये के बीच में, 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी यूपीए की सरकार आम जनता को देती थी कि खरीदते महंगा थे और आम लोगों तक उसको सस्ता देते थे। और जो बीच में फर्क था रेट का, वो सरकार सब्सिडी के रूप में देती थी। 2.25 लाख करोड़ के करीब सब्सिडी थी हर साल, जो मोदी सरकार ने कम करने के साथ ही 0 कर दी, और जो भी महंगाई आई उसको जनता तक पहुंचा दिया। तो कांग्रेस पार्टी जब आएगी सत्ता में, तो दोबारा से वही सब्सिडी की स्कीम लाएगी कि अगर सिलेंडर का रेट कितना भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय रेट कुछ भी हो जाए, चाहे यूक्रेन की लड़ाई चले, चाहे रशिया कुछ करे, लेकिन जनता जिसके लिए कि सिलेंडर एक रोज की जरूरत है, उसको सिलेंडर 500 रुपये में ही मिलेगा। बाकी का जो डिफरेंस है वो सरकार पे करेगी, जैसा कि यूपीए के टाइम पे हम लोग करते थे। तीसरी बात, अभी महिलाएं नौकरी भी करती हैं,
महिलाएं, लड़कियां पढ़ने भी जाती हैं। और बहुत सारी जगह हम लोग देखते आए हैं कि जो ट्रैवल करने का एक्सपेंडिचर है वो बहुत महंगा है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होने की वजह से। तो जो तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, सरकारी बसें, उसमें महिलाओं को बिना किसी और शर्त लगाए हर महिला को राज्य के अंदर कहीं भी फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा हम ऑलरेडी कर्नाटक में दे चुके हैं। आपको मालूम है अभी हमारी सरकार बनी है अप्रैल में, लेकिन वहाँ पे ये योजना लागू कर दी गई है। और महिलाओं का जो वहाँ पे हमने रुख देखा है, जो खुशी देखी है, उनकी जो दिनचर्या में आसानी हुई है, उसको देखते हुए तय किया कि तेलंगाना की महिलाओं को, तेलंगाना की लड़कियों को स्कूल जाने वाली ये सुविधा मुफ्त दी जाएगी कि वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की किसी भी बस में राज्य के अंदर कहीं भी मुफ्त यात्रा करेंगे। दूसरा जो इशू था, जो हमारे सामने पिछले कुछ साल से लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का मुद्दा है। मोदी सरकार 3 किसान कालेदारी की सारी खेती कॉर्पोरेट को दे दी जाए। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि पूरे देश में अडानी ने बड़े बड़े साइलोज बनाने शुरू कर दिए थे जहाँ पे अनाज वो स्टोर करे। पूरे देश में सड़कें अडानी को देनी शुरू कर दी थी। पूरे देश में पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, टोल टैक्स अडानी के पास। तो कोशिश ये हो रही थी कि खेत में भी अडानी हो, ट्रांसपोर्ट में भी अडानी हो, विदेश अनाज भेजना हो तो वहां भी अडानी हो, और किसान जो कि अनाज उगा रहा है, जो कि आज़ादी पसंद करता है, जो किसी के दब के नहीं रहता है, उस किसान को काले कानून लाकर कोशिश की थी मोदी सरकार ने। खैर वो रुक गया। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम इसका फैसला करेंगे। आज 6 महीने के बजाय 1.5 साल हो गया, भूल गए। उसी तरह से तेलंगाना के अंदर भी लगातार बातें हुई। रैतु बंधु की बात करते थे कि हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये वही स्टेट है तेलंगाना जहां 8,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये तो हमारा डाटा नहीं है, ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं किसान को जो क्रॉप लोन वेवर है 1 लाख रुपए का ऋण माफी करूंगा, वो भी नहीं हुआ है। आज 9 साल हो गई है। 24 घंटे फ्री बिजली की बात थी, वो भी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो टेनेंट फार्मर्स हैं, जो किराए पे खेती करते हैं, उनको किसान मानते ही नहीं है। और आप लोगों की ही रिपोर्ट है, यहाँ का मीडिया ही रिपोर्ट करता है, जो मैं दिल्ली में पढ़ता आया हूँ हमेशा, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खेत हैं लेकिन वो खेत किसान नहीं है। तो रैतु बंधु के अंदर उनके पास पैसा जाता है। और मेरे अपने भी मित्र हैं इसमें कुछ दिल्ली में, जो कि हमारे साथ नौकरी करते हैं, वो बताते रहते हैं कि हमारे बैंक में पैसा आ गया। रहते कहीं हैं, काम कुछ करते हैं, लेकिन पैसा उनके अकाउंट में भी आता है, और जो खेती कर रहा है वो इसमें छूटा हुआ है। तो जो कांग्रेस की जो योजना है वो ये है कि हमने इसका नाम दिया रैतु भरोसा। रैतु भरोसा के अंदर हर 1 एकड़ के ऊपर किसान को, जो टेनेंट किसान को 15,000 रुपये, जो टेनेंट फार्मर है और जो एग्रीकल्चरल लेबरर है उसको 12,000 रुपये हम लोग हर 1 एकड़ के ऊपर देंगे। जो ये खेतीहर मजदूर है, जो खेती करता है लेकिन जमीन उसकी नहीं है, कहा कि आप बोनस नहीं देंगे, किसानों को आप नहीं दे सकते, गलत है, हम आपका असिस्टेंस रोक देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे 5 साल धान के किसानों को बोनस दिया है, ये तो आप सब जानते हैं। कर्नाटक में जब हमने कहा कि हम गरीबों को 10 किलो अनाज देंगे, तो मोदी सरकार ने फैसला ले लिया कि कर्नाटक सरकार को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनाज ही नहीं मिलेगा। उनको लगा कि अनाज नहीं देंगे तो सरकार की गारंटी फेल हो जाएगी, लेकिन कर्नाटक सरकार ने बाजार से खरीद कर अनाज देना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब देखिए, अब पूरा का पूरा इकोनॉमी, पूरा का पूरा सिस्टम अब बिजली पे केंद्रित है। पहले तो बिजली घर में लाइट चलाने के काम आती थी, अब तो आपको बैंक भी जाना है, ट्रांजैक्शन भी करना है तो फोन चार्ज करना पड़ता है, बच्चों को भी पढ़ना है तो बिजली चाहिए। अब बिजली जो है वो रोटी कपड़ा मकान की तरह हो गई है, जैसे बिना खाने के नहीं जी सकते,
बिना कपड़ों के नहीं जी सकते, बिना मकान के नहीं जी सकते, वैसे ही बिना बिजली के भी नहीं जी सकते। और बिजली एक बेसिक जरूरत बन गई है, तो आम लोगों को 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देने का गृह ज्योति योजना के अंदर हमारा प्लान है। मकान, मैं देख रहा था इनका केसीआर का डेटा देख रहा था मैं कि मकान की इन्होंने स्कीम शुरू की और केसीआर कॉलोनी बनी है। मुझे नहीं लगता कि कोई रहता है, लेकिन केवल 2% लोगों तक वो पहुंची है, नाम के लिए किया है। कांग्रेस आएगी तो जिन फैमिलीज के पास घर नहीं है उनको घर बनाने की जगह दी जाएगी और 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी ताकि वो अपना घर बना सके। ये 4 जरूरतें आज की तारीख में। तो कांग्रेस गवर्नमेंट जिन पे घर नहीं है उनके लिए घर का वायदा कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए बच्चों को कार्ड देने की बात कर रही है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। हम लोग हर मंडल पे इंग्लिश स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल बनाएंगे। बिजली हम लोग 200 यूनिट फ्री देंगे और 10 लाख तक का इलाज, और 10 लाख में लगभग सारे इलाज हो जाते हैं। ऐसा कोई इलाज नहीं है जो सरकारी हॉस्पिटल में 10 लाख से ऊपर बिल बने, ताकि किसी भी आम व्यक्ति को सिर्फ इसलिए डर ना लगे इलाज कराने में क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग हमारे परिवारों में महालक्ष्मी गारंटी में 2,500 रुपया महीना महिलाओं को, 500 रुपये का सिलेंडर और स्टेट की सरकारी बसों में कहीं भी फ्री ट्रेवल, ये महालक्ष्मी योजना है। दूसरी रैतु भरोसा योजना है जिसमें किसानों को हर एकड़ पे 15,000 रुपये महीना, और जो टेनेंट फार्मर्स हैं उनको 12,000 रुपये महीना हम लोग देंगे, और पैडी के ऊपर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस कांग्रेस पार्टी देगी। ये हमारी रैतु भरोसा योजना। तीसरी योजना गृह ज्योति योजना, जिसके अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री सबको। चौथी गारंटी इंदिरू योजना, जिसके अंदर जिन फैमिलीज के पास मकान नहीं है उनको जमीन देना और 5 लाख रुपए का खर्चा मकान बनाने के लिए देना। और तेलंगाना के जो मूवमेंट फाइटर्स हैं उनको सबको 250 स्क्वायर यार्ड 250 गज का प्लॉट देना ताकि वो मकान बना सकें। 5वीं स्कीम युवा विकासम है, जिसमें युवाओं को 5 लाख रुपए का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने खर्चे, पढ़ाई से जुड़े खर्चे पूरे कर सकें। और हर मंडल में एक तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल बनाया जाएगा। और छठी योजना चियूथा योजना, जिसमें कि जो सीनियर सिटीजन हैं, विडोज हैं, जो बीडी वर्कर्स हैं, जो विकलांग लोग हैं, जो टॉडी टैपर्स हैं, एड्स और फैलेरिया के मजदूर हैं, वीवर्स हैं, उनको, और जो डायलिसिस लोग कराते हैं उनको 4,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। और राजीव आरोग्यश्री योजना के अंदर 10 लाख तक का जो इंश्योरेंस वो हर एक को होगा ताकि फ्री इलाज हो सके। ये सवाल ही बेकार है कि आप स्टेट की पार्टी या नेशनल हैं। ये वैसे ही है कि आप मैं अपने परिवार का भी हिस्सा हूँ, अपने समाज का भी हिस्सा हूँ, अपने मल्टीपल होता है। हमारी पार्टी तेलंगाना की पार्टी भी और राष्ट्र की पार्टी भी। हम जो कहते आए हैं, देखिए तेलंगाना सबसे बड़ा सबूत है। जब कांग्रेस पार्टी ने ये बोला, सोनिया जी ने बोला कि तेलंगाना देंगे, तो कोई नहीं मानता था, पर दिया। अभी आप सब पत्रकार लोग हैं, आप जानते हैं पिछले 1.5 साल के अंदर हमने कहा था कि देश के जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनेगी, जहाँ जहाँ पे डिमांड थी वहाँ पे हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। हमने छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, हमने हिमाचल में लागू कर दी, हमने राजस्थान में लागू कर दी, और तब लागू की जबकि केंद्र सरकार हमारी गवर्नमेंट्स को क्या, जो अभी पेंशन स्कीम चल रही थी, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम बोलते हैं, उसमें हर कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा सेंट्रल फंड में जमा करता है। तो वो पैसा सेंट्रल का जमा है। हमारी सरकारों ने कहा वो पैसा हमें दे दीजिए, हम पेंशन दूसरी ओल्ड पेंशन स्कीम लाना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया वो पैसा देने से। इसके बावजूद हमारी तीनों सरकारों ने वो गारंटी को पूरा कर दिया
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। जब हमने छत्तीसगढ़ में ये बोला था कि हम 2,640 रुपये का हम लोग पैडी का प्राइस देंगे, जो कि 500 रुपये, 2,000 से नीचे 1,900 रुपये का प्राइस रहता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल मदद करने से मना कर दिया। हमने फिर भी पूरे 5 साल दिया, तो कांग्रेस की गारंटी थी। हमने जब बोला कि मनरेगा लाएंगे तो सबने मजाक उड़ाया। आपको मोदी जी का वो भाषण भी याद है प्रधानमंत्री बनने के बाद कि ये कांग्रेस के गड्ढे हैं जिनको मैं नहीं भरूंगा। लेकिन वही मनरेगा आज मोदी सरकार को भी बचाई जब कोविड आया। वही मनरेगा वजह है कि आज जो हमारा रूरल सेक्टर है वो मंदी की मार से बचा। पर जब हम लोग बना रहे थे मनरेगा यूपीए के अंदर तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अब 15 साल से मनरेगा चल रही है। इसी तरह से इस साल राजस्थान के अंदर हमने मनरेगा की तरह, मनरेगा तो गांव के लोगों के लिए है, शहर के लोगों के लिए भी 100 दिन की गारंटीड इनकम योजना शुरू की है, रोजगार योजना। मालूम नहीं आप में से कितनों को पहुंची है। राजस्थान सरकार ने मनरेगा की तरह इस साल अर्बन लोगों के लिए भी जो है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू कर दी है। तो हम कर पाए, ऐसा तो नहीं कि हमारी गारंटी हमने वहां फेल कर दी हो। कर्नाटक के अंदर हमने गारंटी की थी 200 यूनिट बिजली शुरू हो गई है, आपके पड़ोस का राज्य है। 3,000 रुपये का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुरू हो गया है। फ्री बस ट्रेवल शुरू हो गया है। 10 किलो अनाज की बात की थी। एफसीआई जिस दिन अनाज बंटना शुरू होना था, घोषणा हुई, अगले दिन एफसीआई ने मना कर दिया हम अनाज नहीं देंगे, जबकि एफसीआई के पास इतना अनाज है कि वो सड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ना दे पाए, इसलिए मोदी सरकार ने उसको हाथ मोड़ दिया। लेकिन हमने पहले महीने तो कैश पैसा दिया और दूसरे महीने बाजार से खरीद कर हमारी सरकार वहां पे दे रही है, क्योंकि हमने गारंटी दी थी। वो गारंटी कैसे, गारंटीज का पूरा कैलकुलेशन हम लोग जनता के सामने रख रहे हैं। हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। अभी ये जो गारंटीज हैं, चिबुला में खड़गे जी की रैली हुई थी, उसमें हमने वायदा किया कि जो दलित फैमिलीज हैं उनको 12 लाख रुपए का बेनिफिट कांग्रेस पार्टी देगी। कैसे देगी, हमने पहले उसको वर्कआउट किया। 3 लाख करोड़ का बजट है। 3 लाख करोड़ के बजट में जो हमारा सब प्लान है, एससी सब प्लान, वो 30% है। एससी और एसटी सब प्लान यानी 90,000 करोड़ रुपए एससी एसटी सब प्लान के अंडर में है। और अगर आप 3 लाख करोड़ में से अगर आप डेवलपमेंट बजट निकाल दो, वो 1,28,000 करोड़ का है, तो उसका 30% इज ऑलमोस्ट 42,000 करोड़। तो हमने पहले कैलकुलेट किया कि 42,000 करोड़ एससी एसटी के लिए है, जिसको कि केसीआर गवर्नमेंट ने डाइवर्ट किया। उन्होंने लगभग 45.8% जो एससी सब प्लान का है वो डाइवर्ट कर दिया, वो एससी को दिया ही नहीं। 41.8% जो एसटी सब प्लान का था वो दिया ही नहीं। एससी एसटी सब प्लान का हमने कानून बनाया था 2007 या 8 में, जब वाईएसआर गवर्नमेंट थी। इन्होंने इसको डाइल्यूट कर दिया। हम केवल क्या करेंगे कि ये जो एससी एसटी सब प्लान है, जिसमें कि एससी और एसटी के लिए 30% ईयर मार्क है, जो डेवलपमेंट बजट के लिए 42,000 करोड़ रुपए आज की तारीख में होता है, उसको हम एससी तक पहुंचाएंगे। वो 12 लाख करोड़ हम वहां से लाएंगे। तो बीजेपी को ये इसलिए नहीं समझ में आएगा कि बीजेपी ने खुद भी एससी एसटी सब प्लान को पूरे देश में लागू नहीं किया है। बीजेपी ने खुद भी एससी एसटी सब प्लान के अंदर में जो ईयर मार्क बजट होता था उसको डाइल्यूट किया है, केसीआर ने भी किया है। तो ये दोनों तो भाई भाई हैं। इनकी फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी तो एक जैसी है, हमारी सोशल फिलॉसफी डिफरेंट है। तो हम लोगों ने पहले ये काम किया, बजट देखा, मैं फिगर्स आपको बता रहा हूं, 42,000 करोड़ रुपए एससी एसटी के लिए बजट में एज पर एक्ट है। हमको केवल कुछ नहीं करना है, हमको उस कानून का पालन करना है। 55 लाख करोड़ का वो था कर्जा, आज ऑलमोस्ट 145 लाख करोड़ हो गया। यानी कि 70 साल में, 65 साल में 55 लाख करोड़ और 9 साल में अनदर 100 करोड़ ले लिया। अब ये 100 करोड़ कोई तो चुकाएगा। हमने तो 60 साल गवर्नमेंट चलाई, और कहां से चलाई, जब बिल्कुल गरीब थे, जब कुछ नहीं होता था देश में।
कहीं कुछ नहीं था, वहां से सरकार बनाते हुए यहाँ तक लाई ना। तो हमारे टाइम पे बजट, अच्छा फिर एक और फिगर, अब आपने फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछा है। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो जो हमारी नेशनल जीडीपी है उसका लगभग 92% लोग कर्ज हो गया था, 92% कर्जा हो गया था। मनमोहन सिंह जी पीएम बने, 10 साल सरकार चलाई, हमने किसानों को लोन भी माफी किया, हमने लोगों को राइट्स भी दिए, फॉरेस्ट राइट्स भी दिए, हमारी वेलफेयर स्कीम सब लोगों को मालूम है। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ప్రభుత్వం యొక్క ఆ ఖజానానంతా కూడా పేద ప్రజల కోసమే వినియోగిస్తారు, పేద ప్రజల కోసం ఖర్చు పెడతారు. గాంధీ గారి ఫ్యామిలీ, సోనియా గాంధీ గారి నుంచి మొదలుకుంటే ఆ రోజు కూడా ఈరోజు ఖార్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఏఐసిసి దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బులను పేద ప్రజలకే పంచుతుంది. అదే బీజేపీ అక్కడ, ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ అదే డబ్బు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఉన్నోనికి ఇస్తారు, వాళ్ళు కార్పొరేట్ వ్యవస్థకి ఇస్తారు. అంటే అక్కడ ఆదాని, ఇక్కడ పేరులో తేడా, ఇద్దరు ముగ్గురు ఈడ కూడా ఉన్నారు తెలంగాణలో. కాబట్టి ఇది కాంగ్రెస్ రాష్ట్రంలో, కేంద్రంలో ఉన్న ఆలోచన విధానము, ఇక్కడ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఉన్న ఆలోచన విధానం. ఒక్కరికి ఒక ఇంటికే పంపిస్తారు వీళ్ళు, పైసలన్నీ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కాంట్రాక్టర్లకి ఇస్తారు వీళ్ళు. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్, అక్కడ బీజేపీ. కాంగ్రెస్ ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి పైసలు పోతాయి ఇంటికి. ఇప్పుడు ఉపాధి హామీ ఉండేది, ఉపాధి హామీ 10 ఏళ్ల కాలంలో మన్మోహన్ సింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు మన సోనియా గాంధీ గారు ఉపాధి హామీ ద్వారా మీ పనులు మీరే చేసుకోండి, ఈ డబ్బు మీకే వస్తుంది. ఒక్కరింట్లో ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురు, నలుగురు, ఒక్కరు ఎంతమంది ఉంటారో రోజు ఇన్కమ్ ఎంత ఉంటాడు ఎంత వాళ్ళకు. ప్రతి గ్రామంలో ఉపాధి హామీలో రోజుకు 2000, 3000 జీవనోపాధి ఉంటుండే వాళ్ళకి. నెలకు ఒక ఇంట్లో 30,000, ఒక ఇంట్లో 40,000, ఒక ఇంట్లో 1,00,000 రూపాయలు. ఇంట్లో 10 మంది ఉంటే 10 మంది పనిచేస్తుంది. ఉపాధి హామీ ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు తీసుకొచ్చిన స్కీమ్ 10 ఏళ్లలో. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఎప్పుడైనా సరే ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బుని ప్రతి పేదవాడికి రాష్ట్రంలో, దేశంలో పంపిస్తారు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విధానం.